Hi everyone, I'm Navriti Sharma from Mairi Wellness. I'm so glad to be on this group today, and we are going to have a great conversation about women health during pregnancy, pre-pregnancy and postpartum. I'm waiting for Astha to join in and then we can continue with the conversation. Let's wait for her to join in. So we are going to talk about lots of things regarding women health, how we can keep up with good fitness during this time. So I think, yeah. Hello, Hi Asta, how are you? fine. How are you? I'm good, good. So, How's welcome to everything? United Queens, first of all, Thank you so this first much. session. Thank Um, you. so, I'm waiting for some few peoples to join us. Um, Right. I think we are also sure late. A Yeah, little so, bit late because I earlier had logged in from my own page and I was inviting you from my page. oh, that's I And saw now. So, that's why I told you. So, let's yeah, wait for 2 3 minutes. yeah, Let's yeah, join, yeah. everyone to join us. In the meantime, you tell how's lockdown and now the unlock thing happening with you. I'm just busy with this group of United Queens, and it was wonderful experience. As I started it as a group, but now it's a family for me. So it Great, was that's a wonderful good thing. So experience. tell me something about your group, what your group does, like how are you handling these activities and everything? Actually, basically, my motive was women empowerment. Right. लाइक देखो जो प्रोफेशनल्स है ना वो तो मतलब हर एक में स्पेशलाइजेशन है, लेकिन मुझे था कुछ हाउस वाइफ्स भी अपने टैलेंट को आगे लेके आई हैं। काफी लेडीज हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव किया है हमारे इस ग्रुप में। तो बहुत किड्स के लिए सेशंस हो रहे हैं, जो बच्चे घर पे हैं, आर्ट सेशंस, डांस सेशंस। वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द एक्टिविटीज आल्सो। Yeah, सो that's a good initiative that you have taken, and women empowerment in this time is, the much trending topic. So एग्जैक्टली। yeah, I think today's topic is also a part that we play for women empowerment. बट जो आपका टॉपिक है ना, जो कि मैं भी आज तक अवेयर नहीं थी, जब हमारी बात हुई तो आई वांट कि I मेरे know. ग्रुप को, दे आर लकी, तो आपके पास आज टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक, मेनी पीपल हैव जॉइंड अस, कि प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ। Uh, I will tell you a little bit about how this thing started. It actually कुछ ज्यादा नहीं है ये चीज ऐसे है कि हम सब इस फेज से निकलते हैं प्रेगनेंसी एंड ऑल दैट बट वी हैव जस्ट वन हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर अस गायनेकोलॉजिस्ट होता है राइट एंड वी डोंट नो मच अबाउट एनीथिंग फिटनेस एंड न्यूट्रिशन इन दिस फेज हम इससे पहले और इससे बाद में हम अपना लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं बिकॉज हमें वेट लॉस कर राइट बट बिल्कुल। एक्चुअली हम अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पहले अपनी फिटनेस मेंटेन करके रखें अपना एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल मेंटेन तो डेफिनेटली हमारी प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम बेटर हो सकता है बेटर होगा डेफिनेटली बट हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है 5 मिनट से ज्यादा आई डोंट थिंक दे राइट। गिव अस राइट हम वहां पे उनके पास सिर्फ एग्जैक्टली। मेडिसिन एंड टेस्ट्स के लिए जाते हैं बट द रेस्ट ऑफ द क्वेरीज दैट वी हैव are never addressed. So we end up being on Google. And Google is not that great a teacher. Yes, it is an intelligent bot, but it is not going to give us answers on our emotions or all the things that we are going through. ठीक है तो ये सब बेसिकली मेरी प्रेगनेंसी के साथ मैंने सीखा क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में आप सोचो सारी स्टडी खुद ही की थी वर्कआउट्स करती थी आई यूज टू वर्कआउट for all the days मतलब a day before my delivery I was working out so from that experience of mine I learned if I can do it so can everyone else because ये potential सबके पास है but how we take care of this potential how we maintain this potential because maintain करना ही है आजकल वी आर नॉट अवेयर।
सी यही तो द बात है ना। देखो अवेयरनेस ही पोटेंशियल नहीं है। सबके पास है। अवेयरनेस की बात यही है कि हम अवेयर तभी होंगे या तो जब हमें बहुत सारी बीमारी हो जाएगी कोई, बिल्कुल, ठीक है, व्हेन वी आर ये राइट, या फिर हमारा वेट बहुत बढ़ जाएगा बिकॉज बिल्कुल। हमारे को कॉन्शियसली हमें वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। बट हम लोग हेल्थ की बात पे कोई आता ही नहीं है, हेल्थ की बात कोई करना ही नहीं चाहता है, वो मार्केट में भी नहीं है। अगर हम हेल्दी हो गए तो बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, बिल्कुल फॉर राइट। मैटर ऑफ फैक्ट, राइट। एंड विमेन, हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है बट विमेन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज वी आर मेंट टू गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ। सो फॉर अस मेंस हेल्थ इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट इज लेस इम्पोर्टेंट, बट हमें एक अलग लेवल पे इश्यूज भी फिटनेस ज्यादा है, चाहिए। इश्यूज भी हमारे लिए बहुत हैं। हमने खुद ही बना लिए मैम। आप 10 साल बिल्कुल। 15 साल पहले अपनी मदर से, ग्रैंड मदर से पूछो, उनको तो हम्म, पता ही नहीं है, वो तो हम पे हंसेंगे रादर, लाइक कि ये क्या still होता they है, are more active than us, still they do राइट। more work than us। एग्जैक्टली वो इसलिए बिकॉज हमें, हमारे पास फैसिलिटीज बहुत हैं बट हमने ना उसको अपना नुकसान कर लिया उन फैसिलिटी से। वी आर मोर लेजी। हमारे पास आज बड़ी बड़ी जगहें हैं पर उस जगह में खेलने के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं होते, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले। मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एवर प्लेड? जिम ही जाते थे, जिम के बिना लॉकडाउन में हमने क्या एक्टिविटी की होगी, फिजिकल एक्टिविटी? कोई भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो वेट गेन तो एक इश्यू है ही है, बट हमारी हेल्थ लॉस, अगर मैं वेट गेन की बात ना करूं, हेल्थ लॉस बहुत ज्यादा है हमारा। राइट। वेट हाँ गेन जी। इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट बट ऑन अ बिगर पिक्चर वी आर नॉट हेल्दी एट ऑल। राइट। सो ये बिल्कुल। मेन इश्यूज हैं जिससे हमें अवेयर होना चाहिए। एंड आप खुद बताइए ना, आप अपनी बॉडी को ज्यादा जानेंगी या मैं? ऑब्वियसली आप इतने हम खुद। सालों से उसमें रह रहे हैं, लेकिन हम राइट। लोग इस चीज को नर्चर नहीं करते, वी डोंट नो fact that we know our bodies better. राइट। सो मैं एक अवेयरनेस, क्योंकि मुझे तो आपका पता है और आपने जब पहली बार मुझे बताया था तो मैं भी इस कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं थी, एज आई टोल्ड हाँ यू। जी, तो आई वांट कि हम सबको पहले ये बताएं कि व्हेन सम लेडी वुमेन कंसीव्स, तो उनका एक ही होता है कि हमने गायनी के पास जाना है। ठीक है, वो तो बिल्कुल। एक प्रोसीजर है। और हम्म। हमें 1-2 घंटे की वेटिंग करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, उसमें हमें 5 मिनट उन्होंने देने हैं कि आज आपकी ये मेडिसिन है, ये टेस्ट करवा लीजिए। उसमें मेरे को लगता है हमारा हाफ डे से ज्यादा जाता है, जिसमें बहुत टायर्डनेस भी हो एग्जैक्टली, जाती है। कई बार ट्रैवल भी एग्जैक्टली, करना पड़ता है आउट ऑफ सिटीज, जो नॉर्मल सिटीज से हैं वो अच्छी एग्जैक्टली। सिटीज में जाते हैं। तो सिर्फ या 5 मिनट की वो विजिट होती है, जिसमें कि हम अपनी बात भी नहीं अच्छे से कर पाते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाँ क्या जी, डाइट हमें लेनी चाहिए, कैसे हम, हाँ और बस जी, एक पता है कि आजकल सी सेक्शन का ट्रेंड है, वो हो गया उसके बाद भी हम अपने लिए कुछ अवेयर नहीं। एंड इवन मैं ये अपना बैड एक्सपीरियंस बोलूंगी कि माय सेकंड डॉटर इज 3.5 years ओल्ड, और उसके बर्थ के बाद 15 दिन के बाद, स्टिचेस के बाद, मैं आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई, ये एग्जैक्टली, क्योंकि कभी हमें बोला भी नहीं गया कि आपने हाँ आना जी, है, रिविजिट करना है। उनका काम वहीं तक रह गया कि डिलीवरी हुई, आपको छुट्टी मिली, दैट्स इट। तो बाद में हम बच्चे की केयर में लग जाते हैं। एंड हाँ जी, आफ्टर रियलाइज कि हम वी आर ऑल्सो सफरिंग, हमारे हेल्थ इश्यूज कहाँ जा चुके हैं, वेट कहाँ जा चुका है, मेरे को हाइपोथायराइडिज्म हो गया। तो आई वांट टू मेक देम अवेयर, जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या ड्यूरिंग, कईयों का बेबी होने वाला है, दे हैव कंसीव्ड, तो वो कैसे इस चीज से, मतलब अच्छे से आपका पता चले उनको कि गायनी और आप में क्या डिफरेंस है। प्लीज आप मैं उनको ये आपको ना एक बहुत बेसिक चीज समझाती हूँ। गायनेक जो है, शी और ही इज अ डॉक्टर, वो मेडिकल प्रोफेशनल है। वी आर द मिडवेज, जैसे होता है ना डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो एक सोल्यूशन है ना, वो हम हैं, लाइक हेल्थ कोच। मैं आपको डॉक्टर से पहले जो आपकी क्वेरीज है जो डॉक्टर नहीं बता पाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट और बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, राइट। सो वी आर हेयर टू गाइड यू कि आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस इन एनी केस। देखो, प्रेगनेंसी इज, आई थिंक आजकल हम सिकनेस की तरह लेते हैं बट सिकनेस नहीं है, इट इज अ प्रिविलेज, इट इज समथिंग दैट वी आर बोर्न विद, राइट, अ वुमेन इज, राइट।
तो आप लोगों को या मुझे जब प्रेगनेंसी हुई थी या जिसको भी होती है, तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि पहले हम जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तभी हमें फिटनेस के बारे में नहीं सोचना। पहली बात, उससे पहले फिटनेस का ध्यान रखना है। और हमारी जैसे कहते हैं ना, हमारी रिक्वायरमेंट तब भी नहीं आती, हमारी रिक्वायरमेंट पहले भी है। वी आर देयर टू गाइड लाइफस्टाइल चॉइसेस, वी आर देयर टू गाइड यू हाउ टू मूव अहेड इन दिस न्यू फेज। चाहे आपने कंसीव करना है, चाहे आप प्रेग्नेंट है, चाहे डिलीवरी, आप अपने लाइफस्टाइल को इतना, अपने वर्कआउट्स, क्योंकि हर बारी जिम जाकर ही वर्कआउट नहीं किया जा सकता, घर रह के भी किया जा सकता है, राइट। अब तो जिम्स बंद हो गए, यू कैन गेस कि अब कहाँ जाएं, घर पे रह के ही पतला होना है, घर पे रह के ही फिट होना है। सो वी आर देयर टू गाइड यू हाउ टू डू थिंग्स अराउंड योर लाइफ, about fitness, your nutrition, about anything, about your mental health, physical health, about everything that involves you, your personal growth. I am a health coach, so I am more related to your health and lifestyle and wellness. So I am not replacing a doctor, I am not substituting a doctor, I am like a supplement to a doctor, उन्हीं का load कम होगा। We are a help to doctors, where उनकी कम से कम queries, and we are help to you because एक pregnant lady के पास बहुत questions होते हैं, first time mothers के लिए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, right? So how to deal with your mental health, we equip you, we are like जैसे होता है ना, equipment है, हम ऑक्सीजन सिलेंडर हैं आपके लिए एक तरह से, right? So it is like that, we are not substituting a gynecologist, we are not substituting anybody, we are just an additional help जो यहाँ पे लोगों को नहीं पता। It is very common outside, it is very common outside, but here it is a new concept, and yeah, that is all about. So fitness, I think fitness should not start in pregnancy, fitness should start before pregnancy, so that it carries on throughout the process. Right. So कैसे आप गाइड करते हैं, लाइक थ्रू आउट द 3 ट्राइमेस्टर्स आप कैसे गाइडेंस देते हैं, क्या करते हैं? बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये डिपेंड करता है कि कौन से फेज में है। अगर कोई मेरे पास आएगा, प्रेगनेंसी हो चुकी है उनकी, उनके लिए अलग होगा ऑब्वियसली, उनकी स्टेज, उनका क्या, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या उनकी इस टाइम सिचुएशन है, कोई इश्यूज हैं क्या है, ऑब्वियसली सबका अपना 1-on-1 होता है। बट मैं, अगर अभी कोई मुझे सुन रहा है जो अभी कंसीव करने को ट्राई कर रहा है और इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, आई वुड सजेस्ट देम टू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग। हम लोग प्रेग्नेंट, मैं खुद बहुत डरती थी, लाइक आई वाज ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग की प्रेगनेंसी, क्योंकि आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, देयर वाज नो वन टू टॉक अबाउट इट। आप ये बताओ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम अपनी प्रेगनेंसी में गई हूँ, व्हेन आई हैड ऑलरेडी कंसीव्ड। उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके करना क्या है, राइट? तो we end up, वही ना, we end up going to doctors either when we are in problem, और मतलब बहुत बहुत ज्यादा कुछ खराब हो चुका है काम, राइट? उससे पहले हमें अवेयरनेस ही नहीं है। सो किसी को ये स्टेज जब अचीव हो चुकी है प्रेगनेंसी की, या कोई ट्राई कर रहा है, या डिलीवरी भी हो चुकी है, मैं तो यही बोलूंगी कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल और एंशियंट बातें हैं कि 40 डेज का जो आइसोलेशन होता है, कंफाइनमेंट होती है, ये कुछ चीजें जो होती है वो बहुत सही है, राइट? वो फॉलो करनी चाहिए, सो दैट हम अपनी, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए, वो वेट लॉस, या ये ट्रेंड नए आए हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, वेट लॉस ये बहुत नया ट्रेंड है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, ठीक है, फॉलिक एसिड, पुराने लोग नहीं सोचते थे, उनको बस अपना ध्यान रखना था, बाकी सब अच्छा खाना था और सोना था, अच्छा पीना था, और बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती थी। बट अब हमारा ध्यान होता है वेट लॉस, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, तो इस चक्कर में ना हम अच्छा खाना भूल जाते हैं और नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाते हैं, राइट? So, पहले ये हमने अवेयरनेस दिया नहीं है ना, पहले हमारे अवेयर नहीं थे, हमने नहीं दिया। आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी भी इन चीजों का डाइट तो कुछ था ही नहीं कि वो भी होता है कि मोटे हो रहे हैं और वेट गेन ना हो जाए, बाद में भी होता है। जैसे अभी पेरेंट्स कहते हैं पंजीरी खा लो, ये खा लो, तो ये तो और वेट गेन करेगा, आगे हो गया है। तो
समटाइम्स गाइडेंस एक्चुअली प्रॉपर नहीं है ना। मैंने तो आपको बोला है कि एक स्लिप पे सिर्फ लिखा जाता है ये मेडिसिन हैं, ये बिल्कुल। टेस्ट हैं और ये बस। रीविजिट। ठीक है, उन पे बिल्कुल। भी लोड बहुत है। आप किसी भी गायनी के पास चले जाइए, हम अगर जालंधर की बात करें, किसी भी सिटी की बात करें, दे आर मतलब ओवर क्राउडेड। तो ओवर डॉक्टर्स क्राउडेड, को बहुत एग्जैक्टली। प्रेशर है इस टाइम। तो वो भी उतना ही टाइम दे सकते हैं, उन्होंने ओपीडी भी देखनी है, मतलब ऑपरेट भी करने लाइक जाना है। डॉक्टर्स के अपना है, अब हर चीज में ट्रेंड हो गया, मेडिकल फील्ड के अपने ट्रेंड है। जैसे आप कह रहे हो सी सेक्शन का, मैं ये बोलूंगी सी सेक्शन ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज आई वुड से वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, आवर बॉडीज आर नॉट प्रिपेयर्ड बिल्कुल। फॉर जो चीज हमें भगवान ने दी है। दिस इज समथिंग विच इज नेचुरल एंड वी आर ओनली कॉजिंग इट अ प्रॉब्लम। वी आर दी ओनली प्रॉब्लम मेकर्स। लाइक हम ही हमारे ही लाइफस्टाइल की वजह से हमें पीसीओडी हो रहा है, हमारे ही राइट। लाइफस्टाइल की वजह से हमें थायराइड हो रहा है, हमारे ही लाइफस्टाइल की वजह से हमें डायबिटीज है। लाइक आई एम नॉट सेइंग, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड, बट मैं ये आपको रियल प्रॉब्लम रूट कॉज बता रही हूँ कि हमारी ही डाइट, लाइफस्टाइल एंड ठीक टाइम पे ना सोना इज अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन करेक्ट ऑल ऑफ दीज। अगर हम यही ठीक कर देना तो शायद वो जो मोटी मोटी दवाइयां है ना वो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट। राइट। अच्छा, एंड इनफैक्ट पीपल डोंट बिलीव ये प्रॉब्लम है। जब तक एक डॉक्टर की पर्ची पे दवाई ना लिखी जाए उनको लगेगा ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं बोल दूं ना आप टाइम पे सोना शुरू कर दो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, काफी थायराइड नॉर्मल ठीक हो जाएगा, जब तक हाँ अलार्मिंग केस नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि अलार्मिंग केसेस भी नहीं है ठीक हो इनिशियल। सकता है। लाइफस्टाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि यू कैन नॉट रिप्लेस फूड विद मेडिसिन। फूड की अपनी जगह है, बिल्कुल। मेडिसिन इज इमरजेंसी। सो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा ना, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। एक्चुअली पहले हमने बाहर का खाया बहुत है, अब हम हाँ ओवर जी, डाइट कॉन्शियस हो गए हैं कि अब हमने शुगर भी एग्जैक्टली नहीं खानी है, अब हमने वो भी। बिल्कुल। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड जिसको बोलते हैं ना, पहले तो हमने काफी की है, तब तो सोचा ही नहीं। तो जब थायराइड हो गया एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा लगा कि नहीं, मेडिसिन से काम नहीं हो रहा। तो फिर और थोड़ी सी जब हमने वो वो अपने जीभ के स्वाद भी कभी नहीं छोड़े। नहीं छोड़े। सीरियसली वो मैं तो प्रॉब्लम है। एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मतलब बहुत लेट समझ आती है, तब नहीं पता चलता। मेरे को लगता है ये सबके साथ था। शायद बिल्कुल। लास्ट 2-3 ईयर से सब हम बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, एक दूसरे को देख के भी हो गए हैं, फिटनेस ये वो पता सोशल अभी। मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा हो गया मैम। पहले इतना ट्रेंड नहीं था कि सभी। अब अच्छा, अब जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं उतनी मदर्स यंग हो रही हैं, देखो आप। एग्जैक्टली। जिनके 14-15 टीन में है, उतनी मदर्स उनकी सिस्टर्स लग रही हैं, दे आर सो कॉन्शियस। तो कुछ पहले 5-6 साल पहले ऐसा ट्रेंड आया था कि हमने घर पे खाना बनाना ही नहीं था। पिज्जा, हाँ, बर्गर, पिज्जा जंक एंड बर्गर सभी वो एकदम। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ना मैम। ये भी एक ट्रेंड है। अभी तक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, अब हमारा वो आ गया है, योगा कर लो, डाइट ले लो, है ना। बट मैं ये बोलूंगी अगर हम नॉर्मल नॉर्मल चल लें तो उससे बेस्ट ही नहीं है। क्यों हमारे को हर ट्रेंड में फंसना। लाइक मैं हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी ऑनेस्टली। मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई थी बिकॉज मैं एक स्विमर रह चुकी हूँ और मेरा लाइफस्टाइल शुरू से ऐसा है। लेकिन मेरा वेट गेन और वेट लॉस का आप मान नहीं सकते, ऐसा होता है 1 महीने में 10 किलो भी बढ़ जाता है। और लूज करना हो तो मैंने 2-3 बारी, लाइक आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट इन लाइक इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months, लाइक 25 to 30 kgs। और वर्कआउट से। लेकिन क्या है, आई वॉज मिसगाइडेड ऑल्सो कि ये नहीं खाना, वो जो फैट डाइट्स होती है, नमक छोड़ दो, ये छोड़ दो, उससे हेल्थ पे एनर्जी आपको, देखो आप ये डाइट ले लो, आपको कभी भी फ्रेश फील नहीं होगा। आपको नींद से उठोगे आपको तब भी लगेगा यार थोड़ा और सोना है, थोड़ा और सोना है। जिस दिन घी घी वाली एक रोटी खा लोगे ना, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी मोशन भी सही होगी, आपकी आईज भी फ्रेश, सब कुछ फ्रेश होगा। सो व्हाई नॉट अडॉप्ट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जहां पे अगर थोड़ा सा वजन बढ़ भी गया है उसको कम करने का स्ट्रेस भी नहीं होगा। और बिल्कुल। अगर नहीं कम हो रहा है तो हमें पता है कि हमने क्या गलत किया था, वो हटा देंगे। ऐसा नहीं है फटाफट भागेंगे। आजकल क्या है, फटाफट हम डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाते हैं, अगर उसके पास नहीं जाना तो जो भी ट्रेंडिंग डाइट है वो फॉलो कर लेते हैं। बट वी आर नॉट अवेयर कि हमारी हेल्थ वो अलाउ करती है या नहीं करती।
मैम मैंने खुद आपसे कल भी हम बात कर रहे थे कि मैंने इतने डाइटिशियंस को वन आफ्टर अदर किसी से पूछा आप कैसे पतले हुए, उस डाइटिशियन से चलो उसको फॉलो किया। मतलब वो इतनी लिमिटेड डाइट देते थे ना कि पतला तो क्या, मेरे को लगता है वो बंदा जिएगा ही नहीं। सुबह मतलब एग्जैक्टली, इतनी सी लेनी है, दोपहर को इतना इतना कम कि सीधा नहीं ना आप इतने पे आ सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली। हेल्दी आप ऑप्शंस बताइए कि ये नहीं खाना वो खाना। और अभी हमने एक यूनाइटेड क्वींस में भी फिटनेस ग्रुप मैंने खुद स्टार्ट किया है। तो हाँ मैंने जी, इसमें हमने यही ट्रेंड रखा है कि टेक डिटॉक्स वाटर, ईटिंग हेल्दी, मतलब हैबिट्स अच्छी करो अपनी भी बच्चों की। एग्जैक्टली। उसमें हम पिज्जा भी बनाते हैं तो फ्रूट्स का बनाते हैं। हाँ, मैंने देखा था वाटरमेलन आपका। से रखते हैं। हाँ, वो मतलब प्रेजेंटेशन जब अच्छी होती है ना तो खाने का दिल करता है। तो एक और चीज हम मैम उसको। रिजल्ट अच्छा होता है ना, मैं तो आपको एक बात बोलूंगी, जब आपको बिल्कुल। रिजल्ट अच्छा मिलेगा ना, तो वो कौड़ा भी स्वादा लगेगा। जैसे कहते हैं ना, पुरानों की बात है, पुराने बुजुर्गों की, आले दा खादा ते बुजुर्गा दा हाँ, कहा। बहुत बात बाद चुप। में ही पता लगता है, बाद में ही पता लगता है। तो सो उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम हेल्दी, मतलब जब एक दूसरे से शेयर करते हैं ना। कोई कहता है कि मैं इतने सालों से कोक पीती थी बट पता है कि आज हमने रात को डिस्कस करना है तो मैंने नहीं, मतलब कि हमने हेलो। क्या लंच लिया। या तो वो हम अवेयर रहते हैं कि हमने डिस्कस करना है, शेयर करना है, तो हम गलत खा ही नहीं सकते हैं। तो इट्स बिल्कुल, ये नहीं है कि खाना नहीं है, हम राइस भी ले रहे हैं, चपाती भी ले रहे हैं, सैलेड भी ले रहे हैं। बिल्कुल, हमने शुगर छोड़ी, मैदा छोड़ा, थोड़े ईटिंग हैबिट्स चेंज किए। हमने प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें छोड़ी, बिस्किट्स, बिल्कुल। मैदा सब वो आउट मैम किया। मैं एक आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी, ये मैं अपने काफी सारे क्लाइंट्स को यही बताती हूँ कि कोई डाइट फॉलो ना करो अगर, ठीक है, सिर्फ ये दो चार बातें याद रख लो: रीजनल, सीजनल, लोकल एंड फ्रेश। बिल्कुल। बस। ठीक है, जो राइट। अभी ये हमारे को है ना कि ये ऑलिव ऑयल से खाना है, ये फलाना खाना है, नहीं, देसी घी खाओ, बेसिक इज मक्खन बेस्ट। खाओ, बिल्कुल। लस्सी पियो। क्योंकि पंजाब में यही चलता है, ये पंजाब के सीजन के, ये रीजन के हिसाब से यही अप्रोप्रिएट है। ऑलिव ऑयल का जो कंडीशंस है ना, वो उस कंट्री के लिए है। एग्जैक्टली। राइट। घी हमारे लिए बना है, हमारे बुजुर्गों ने भी यही खा के 100 100 साल तक जिया है। सो हमें भी बिल्कुल। अपने अपने रीजन के हिसाब से खाना खाना चाहिए, अपनी सीजन के हिसाब से। राइट। बिल्कुल। और हम जब हमारा वेट बढ़ जाता है, हम वो फ्रूट्स भी खाना बंद कर देंगे, मैंगो नहीं खाना, मैंगो से, हाँ, मैंगो ये इज बड़ा सच अ ट्रेंड है। हेल्दी। ये बिल्कुल। इतना मिसकंसेप्शन है। बहुत। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। आप अपनी प्लेट को 4 हिस्सों में बांटिए, जिसमें सैलेड भी होना चाहिए, जिसमें चटनी और अचार भी होना चाहिए, बिकॉज चटनी अचार भी आपको ऐसे डायजेस्टिव। न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लाइक मिनरल्स होते हैं उसमें, कुछ ऐसे वाइटामिन सप्लीमेंटिंग होते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी। एंड बिल्कुल। उसकी अमाउंट भी थोड़ी होती है। इतने से अचार से कोई मोटा नहीं होने वाला। और घी, रोटी होनी चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए, लेंटिल्स, पल्सेस, सब कुछ होना चाहिए। एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्लेट को 4 हिस्सों में बांट के खाए, दैट इज द बेस्ट डाइट रूटीन यू कैन हैव। एंड आई एम राइट। श्योर आपको किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू कैन सी आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। दूध लीजिए, लस्सी, छाछ पीजिए, कोक बिल्कुल। की जरूरत ही नहीं लगेगी। जरूरत ही मतलब नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, अगर आप महीने में, हफ्ते में एक बार थोड़ा सा पी भी लेंगे, उसका चीट डे नुकसान नहीं। संडे, चीट संडे डे, हम चीट हाँ, दे सकते हैं कि होना एंजॉय इट। चाहिए। मतलब अपनी लेकिन बॉडी के साथ आपको आपको बच्चे। अवेयर होना चाहिए कि ये, यस। आप पीने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अगर 1 गिलास से ज्यादा पी लिया तो आपकी बॉडी में इतना शुगर चला जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा अवेयर होना चाहिए, दैट्स इट। राइट राइट। बिल्कुल। मैम मैंने, सॉरी, हाँ, आर यू देयर? या आई एम मैंने देयर। 2 इयर्स डाइटिशियंस को फॉलो किया मैम, मैंने 2 इयर्स मैंगो नहीं खाए। दे सेड कि एग्जैक्टली। मैंगो बहुत वेट बढ़ाता है, मेरे को टेस्ट ही भूल गया कि मैंगो क्या होता है, मैंने टच नहीं किया। मैंने कहा मैंगो छोड़ के भी नहीं मेरा तो कम हो रहा था। फिर मैं मैंगो तो अभी, मतलब हम लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, हर फ्रूट सीजनल जैसे आपने बोला। आपका ना हाँ, आवाज कट गई थी, क्या बोला आपने? तो मैंने कहा मैंगो। कि जैसे मैंगोस बंद कर दिए थे उन्होंने कि टू हाँ इयर्स जी। लिए ही नहीं हमने, तो वेट हम्म। लॉस तो फिर भी नहीं हुआ, रिजल्ट्स मिले नहीं, वीकनेस हो गई, फेस डल हो गया एग्जैक्टली, एकदम से।
ग्लो चला गया, तो मैंने कहा इससे अच्छा तो ना खुद ही थोड़ा मतलब बेटर किया कि सब कुछ खाओ, अच्छे से खाओ, देसी घी लगाना है थोड़ा सा लगाओ, एक टाइम लो, घर का मक्खन भी वाइट लो, लस्सी भी बिल्कुल पियो, फ्रूट्स भी खाओ, बिल्कुल। सैलेड खाओ। वो ये नहीं खाना आज सारा दिन, वो नहीं खाना, स्टारवेशन करके तो फेस ऐसे नीचे जाता है ना, तो अपने आप ही बंदा पतला लगेगा, बाकी बॉडी नहीं जाती है। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, देसी घी अगर आप ज्यादा ले भी लोगे ना, गरम गरम, हर चीज को लेने का एक तरीका है। देसी घी से बिल्कुल। फ्राई मत करो, सबसे पहली बात। ऊपर से लगाओ। देसी घी से, हाँ ठीक है, ऊपर से लगाइए। और अगर आप देसी घी खा भी रहे हो ना, तो वो आपका, जैसे बोलते हैं ना, सेटेटी बढ़ाता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी बिकॉज हैवी होता है। ठीक है, यू कैन लास्ट फॉर लॉन्गर, आपका ज्यादा टाइम बिना खाए निकल जाएगा। और फिर जब आप खाएंगे तो ऐसा नहीं होता कि सारा दिन ही देसी घी खाते रहो, भी सुबह भी ऐसे नहीं होता है ना। ये तो हमें पॉसिबल नहीं है। हर चीज को डिवाइड करके लेना है। बट कई कोई भी डाइटिशियन चीज, पता कर देते हैं कि नो देसी घी खाने, जैसे आपने पहले बोला कि ऑलिव ऑयल वो ढूंढो अपने लिए, मतलब वो एक मुझे आशु एक उनका क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, क्वेश्चन है, मैं भी वही डायबिटिक है। कह रही हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं हम। मैम बिल्कुल। डायबिटिक हो, पहले तो मैं आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी कि क्या डाइट आप ले सकते हो। पहले तो मुझे जानना पड़ेगा आप कौन से टाइप के डायबिटिक हो। मैं यही बोलूंगी कि आप एक्स्ट्रा शुगर मत लीजिए, सबसे पहली बात। ओवर जो शुगर है, आप शुगर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा खाना खाएंगे और बिना एक्सरसाइज के हमारा ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वॉक कीजिए, आपके लिए वॉक बहुत अच्छी है, योगा करिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, और कुछ ऐसे आपको, यू हैव टू स्लीप गुड। डायबिटिक्स में ये एक स्लीपिंग इम्पोर्टेंट है, और एक आपके मील टाइमिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना खाना सोने से 3 से 4 घंटे पहले ले रहे हैं एंड आप अच्छी स्लीप ले रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। बाकी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरे से एक बार पर्सनली बात कर लेंगे, तो वो आई कैन टेल यू इन डिटेल व्हाट कैन यू डू। डाइट में ज्यादा नहीं, मैं आपको एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से बता पाऊंगी। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट। एंड मुझे इस बात से याद आया, मेरा अभी ना कुछ साल पहले थायराइड आ गया था, बिकॉज मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था। सो आई वेंट टू अ फ्रेंड, शी इज अ डाइटिशियन, शी इज एन आयुर्वेदिक डाइटिशियन, लोकल है। तो शी गाइडेड मी सो वेल कि उनके कॉन्फिडेंस देने के बाद ही मैंने ये सब चीजें शुरू की। और मुझे लगा हाँ, हमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और ये सब चीजों को और प्रमोट करना चाहिए, सो दैट हम कम से कम बीमार पड़े, और अगर बीमार हैं तो हम जल्दी रिकवर कर जाएं। इन ऑल दिस जर्नी आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। तो मैं उनको, उनका नाम भी मेंशन करूंगी, डॉक्टर दिव्या कालरा। शी इज बीन सो ग्रेट, एंड इतना उन्होंने मेरी हेल्प की है इन दिस मैटर। तो आज मैं उनकी वजह से काफी यहाँ पर हूँ, विद हर गाइडेंस एंड ऑल। मैम अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि लाइक आई एम हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट, आपको बताया मैंने आप, तो हाँ, आप कैसे हेल्प करते हो? लाइक जो भी, अब चलो पोस्ट प्रेगनेंसी नहीं केयर की, बिल्कुल भी नहीं की, 2 सिजेरियंस थे तो नहीं की, तो मतलब क्या आप ट्रीटमेंट किस वे से करते हो, सो दैट मैम बाकियों को थोड़ा पता चले। एक्सरसाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगी। अच्छा, और पता है क्या, ये आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है कितनी देर से है, क्या उसकी रेंज है, हम आपके ये पूरा पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है। इसके थ्रू ही मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपके, क्योंकि देखो 2 या 3 चीजें होती है, एक्सरसाइज होती है मेन, डाइट होती है दूसरी, तीसरी होती है स्लीप। ये 2-3 चीजों को ही हमने एडजस्ट करना है, जिससे हम काफी चीजें ठीक कर सकते हैं। देन मेडिसिन तो है ही है, इफ द केस इज वेरी एक्सट्रीम। सो इन 3 चीजों के मिक्सचर से ही हम आपको आगे गाइड करते हैं कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर, व्हाट थिंग्स यू शुड अवॉइड, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होती है डाइट में भी जो आपको अवॉइड करनी होती हैं। बिल्कुल राइट, राइट। जो आपका जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन सिक्रीशंस है, उनको इनहिबिट करते हैं, उनको अवॉइड करना है। ठीक है, या जो एग्रावेट करते हैं, हमें उनको अवॉइड करना है। तो ये चीजें हम मैं आप, क्योंकि आपने ब्लड टेस्ट ऑब्वियसली कराए होंगे, या जो आपने टेस्ट यस। करवाए होंगे, तो उनके थ्रू हम पूरा मेडिकल गाइडेंस के साथ ही चलते हैं। ऐसा नहीं है मैं आपको कोई दवा बना के दे दूंगी, ये ले लो आप ठीक हो जाओ। सारी मेहनत आप ही को करनी है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी अब आपको ये करना है,
अब आपको वो करना है सब कुछ, आई विल गिव ऑल द पावर टू यू, ताकि कल को मैं आपके साथ नहीं भी हूं ना, यू नो व्हाट यू कैन डू विद योरसेल्फ. This is women empowerment that I am trying to do on a level. I'm trying to help other women because ये मैंने अपने साथ किया, Yes, practically you have done that. प्रैक्टिकली किया. अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है किसी डाइटिशियन को फॉलो करने की. समझ में आ जाता है ये प्रॉब्लम है, इस ये मैंने गलत खाया, ये मैंने ऐसे किया, अच्छा इसको ऐसे ठीक कर लेना है, थोड़ा Right. वर्कआउट कर लेना है, योगा कर लेना है, मेडिटेशन कर लेना. एक तो स्ट्रेस इज अनदर फैक्टर दैट आई हैड मिस्ड आउट अर्लियर. हम स्ट्रेस यही बहुत सब लेते हैं. चीजें लेके आ रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड क्वींस में, जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा कि मे बी किसी को अच्छा लगे या क्या, हमारा ब्यूटिशियन का सेशन होगा ना, या कोई भी हम्म. कुछ भी फैशन के रिगार्डिंग अगर मैं करूँ, मैंने करवाया नहीं अब तक, मुझे लगता है इतना एक्सट्रीम उसका होता है ना रिस्पॉन्स, चाहे मैं किसी को ना भी बोलूँ अटेंड करने के लिए, पर जब हमारा योगा मेडिटेशन या हेल्थ के रिगार्डिंग हो ना, तो अवेयरनेस नहीं है अभी, तो आई वांट क्योंकि टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस. मैं बताती हूँ, हमें ना देखने में चीज अच्छी लगनी चाहिए. हमारा ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें विजुअली चीजें अच्छी लगती है ना, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. मेकअप वगैरह इसमें कोई गलत नहीं है, जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी होगी तो ऑब्वियसली बाहर से भी ब्यूटीफुल होगी होगी. सो अगर हम, और क्या जा रहा है अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख लें, थोड़ा सा डॉक्टर्स के पास ही कम जाना पड़ेगा, दवाइयां कम खानी पड़ेगी, मेकअप तो बीमार में भी लगाना है और बिना बीमार के भी, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख लेंगे तो मेकअप और अच्छा लगेगा हमारे ऊपर. सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब जब हम सेशंस अब देखते हैं, पीस देखो, हर एक, मेरे को नहीं लगता कोई भी एक पर्सन होगा जो स्ट्रेस फ्री हो, एनीवे, बिल्कुल. चाहे फैमिली चाहे बेबी कुछ भी इश्यूज रह रहे हो, तो हम एक मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, सेशंस लगवाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, कितना पीसफुल लगता है ना. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई वांट टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस कि मेक इट योर हैबिट, मेक इट योर पार्ट ऑफ रूटीन, अपने आई विल लिए. सजेस्ट यू वन थिंग, ग्रैटिट्यूड. ये मैंने आपसे कल भी बात की होगी, हमने कभी इट इज भी वंडरफुल. अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं किया. हम हमेशा दूसरों से वो अप्रिसिएशन चाहते हैं. हम तैयार होते हैं इसलिए कि आजकल का जो ट्रेंड है कि हमें कोई और कॉम्प्लीमेंट दे. हमारे पास हमारे लिए उतनी बातें नहीं होंगी जितनी हमारी कबर्ड में कपड़े होंगे. आप समझ रहे हो, हम अपने आप को खुद कभी शीशे में खड़े होके बोला है अपने आप के लिए कि यार मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मतलब मेरे जैसा तो कोई नहीं है. हम हमेशा बोलते हैं हमें उसके जैसे दिखना है, उसके जैसी बॉडी चाहिए. मतलब मैं आज बोलती हूँ मैं भी मोटी हूँ, मतलब मैं मोटी नहीं बोल रही, मैं हेल्दी हूँ, बिकॉज दिस बॉडी हैज हेल्प्ड मी टू लिव like दिस this. लाइफ. It has helped me to birth a baby. It has helped me in all my ups and downs. मेरे अच्छे में मेरे बुरे में, लोग थे या नहीं थे, ये बॉडी ने कभी साथ नहीं छोड़ा. So I make a point to thank myself every day. भी चाहे हम खुश हैं चाहे दुखी हैं, अपनी बॉडी को जरूर ग्रैटिट्यूड, जरूर थैंक्स करना चाहिए, एंड राइट. डेफिनेटली स्ट्रेस कम होगा. हमें राइट. ये हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स हैं दैट वी शुड डू फॉर आवरसेल्व्स. अपने लिए सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव जरूर करना चाहिए. बिल्कुल, यही अवेयरनेस जरूरी है, और शायद हमने आपके वाली बात की कभी भी नहीं कहा होगा, यही कहा होगा यार मैं उतनी पतली नहीं हूँ, मैंने वैसे, मैं या आई मैं एम तो नॉट बहुत अमंग मोटी देम हूँ. मतलब हम अपने कि आप को यही बोलते हैं ना, यार मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, क्या कितनी गंदी लग रही हूँ, मैं आई कितनी बेकार नेवर लग रही कंपेयर हूँ. माई सेल्फ विद एनीवन, ये मेरी हैबिट है, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है. मैं एक ही किट्टी आज तक डाली, स्टार्ट की, और मैंने वहां पे यही टॉपिक देखा कि उसने आज वही पहना है जो पिछली में पहना था, वही रिंग पहनी है. मैंने कहा मैं आज के बाद नहीं आऊंगी, आई कांट एग्जैक्टली. हैंडल ऑल दिस गॉसिप्स. तो कुछ सीखने को ही नहीं, जहां मिला तो वहां क्या जाना. तो एग्जैक्टली. सो मतलब ये वो चीजें हम बहुत शैलो, हम लोगों को आउटर ब्यूटी, although it is important, but when you are healthy from inside, definitely you will be beautiful from outside. So ये रिलेशन ऐसा बिगड़ेगा ना, अगर इनर हेल्थ खराब होगी तो आउटर ब्यूटी पे भी फर्क पड़ेगा. राइट. एंड एक नीचे क्वेश्चन आ रहा है, कैन हाइपोथायरॉयडिज्म बी ट्रीटेड विद डाइट? यस, डेफिनेटली.
डाइट इज इंटरकनेक्टेड ना। जो आप फूड इनटेक कर रहे हो उसी वजह से आपकी बॉडी कुछ उस फूड को रिएक्ट कर रही है, और आपकी बॉडी में, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, आपकी बॉडी में कुछ इम्बैलेंसेस हैं, इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो हमें कुछ ये इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना है। दिस कैन बी डन थ्रू, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, थ्रू डाइट, through exercise, and definitely medicines are there to cure it. But if we correct our lifestyle, तो मेडिसिन का जो प्रोसेस है वो और स्मूथ हो जाएगा। तो आजकल यही प्रॉब्लम्स, पीसीओडी एंड ऑल दैट, इन सबको हम अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अगर लाइफस्टाइल ठीक होगा ना तो डेफिनेटली ये डिसऑर्डर्स 10 से 15 साल पहले जो नहीं सुनने को मिल रहे थे, आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ज्यादा कॉमन हुए हुए हैं। मैम एक क्वेश्चन ऊपर चला गया, दैट वाज फ्रॉम लीना मैम, कि मैम प्लीज गाइड, कैन समवन कंसीव विद ऑटो इम्यून डिजीज? Autoimmune disease like what? Like diabetes is also kind of that. So which kind of disease is she talking about? That needs to be, because this is a very general term about which disease ओके, she's talking about. Yes, conception is definitely possible, but कौन से disease की वो बात कर रहे हैं और उसका क्या केस स्टडी है, क्या उसका हिस्ट्री है, वो जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मैं अभी आंसर नहीं कर पाऊंगी। एक हमारे साथ जसवी मैम ने बड़ा अच्छा बोला है कि शिल्पा शेट्टी जैसी हर कोई नहीं हो सकती मैम, मैं वैसे नहीं हो सकती, बट मैं जैसी हूँ बहुत अच्छे। मैम आपकी तो स्किन बहुत ही सुंदर हो। बहुत अच्छी है, ये बहुत बहुत, शी इज वेरी, मेरे को इनकी स्किन इतनी अच्छी लगती है, एंड वेरी, शी इज वेरी गॉर्जियस। तो मैम वही बात हम कल भी कर रहे थे, मैम से भी बात हो रही थी, पतले होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट हेल्दी होना इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, हेल्दी होना हेल्दी होना इम्पोर्टेंट। है। अगर हम पतले हो गए और हमें इतनी डिजीजेस लगे, मैम वो कल वाली प्लीज एग्जांपल, वो लिफ्टिंग वाली एक बार रिपीट कीजिए सबके लिए, इट वाज कौन से वेरी वाली? गुड। आपकी आवाज कट गई, कौन से वाली? लिफ्टिंग वाली आपने बोला ना कि 90 केजीज पर्सन कैन लिफ्ट हर बॉडी, तो एग्जैक्टली exactly, मतलब ये, हाँ, मैं ये एग्जांपल बहुत बार देती हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि हम हैवी हैं, हम अपने साइज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, लेकिन उसका क्या फायदा कि अगर हम 90 किलो के हैं और हम अपने, फिर भी हम 10 पुशअप्स लगा सकते हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम 50 किलो के और एक हम वॉक करते हुए भी थक जाते हैं और सांस चढ़ जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। आई वुड प्रेफर अ पर्सन हु इज 90 kgs and still can lift herself and is very active than a person who is just 50 kgs and can't do her own chores of normal routine or daily routine. And she's बिल्कुल। telling उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, डेली मेडिसिन लेने के बाद भी वेट गेन हो रहा है। मैम आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा बिफोर कंसेप्शन, बिकॉज जनरली प्रेगनेंसी में फिर इश्यूज आ जाते हैं, कंसेप्शन में भी इश्यूज आ जाते हैं, तो इसको ट्रीट कीजिए। आई होप ये उन्हीं का ही क्वेश्चन है। हाँ नहीं मैम, उनका आंसर था आर्थराइटिस है, उनको उनका कंसीव हो सकता है अर्थराइटिस, arthritis। यस यस, अर्थराइटिस में कंसीव हो सकता है, लेकिन सिंस उनका वेट आगे बढ़ेगा, बेली वेट बढ़ेगा, तो उनको वॉकिंग में और नीज में प्रॉब्लम आ सकती है। तो डेफिनेटली वो अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट करें, थोड़ी एक्सरसाइजेस करें, जिससे उसके बाद, क्योंकि प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम ना है, वेट गेन तो होगा डेफिनेटली, बेली का प्रेशर होगा, बैक पेन होगी, तो उनको फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे पहले वो डेफिनेटली अपना एक एक्सरसाइज रूटीन और एक गुड डाइट बनाए, जिससे अर्थराइटिस काफी हद तक उनको इजी हो सकता है इस प्रोसेस में, प्रेगनेंसी के उसमें। ओके। मैम एक रचना सोपती भाभी का एक मैसेज है, आप प्लीज उसको लीजिए, क्वेरी को। देन आई विल जस्ट वांट टू से इट्स नॉट अ गुड डाइट। जो आपको यस। वीक फील करा रही है, तो डेफिनेटली आप कुछ मिस कर रहे हैं उस डाइट में। और डाइट में आपको सिर्फ ये बोलूंगी, सिर्फ एक फूड इनटेक नहीं होता डाइट में ना, अगर हम इसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव देखें कि डाइट होता है एक तरह से, अगर मैं बोलूँ हमारे पास 5 सेंसेस है, टेस्ट इज वन ऑफ दैट सेंस through which we take food. Other is what we, you know, think, how we think, how we, what we look at. अगर हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, वो है ना, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। सो डाइट में मैं आपको बोलूंगी आपकी कुछ मिसिंग है चीजें डेफिनेटली, जो आप वीक फील कर रहे हैं, यू आर मिसिंग आउट ऑन some important nutrients that you should definitely include, like इनकी फैट इन ये नहीं ले रहे होंगे या कुछ होगा, मुझे उसकी
she needs to tell me the detail what she's having शी to इज know नॉट why इवन ओवरवेट, बहुत नॉर्मल है, मतलब शी इज नॉट एट ऑल वही ओवरवेट। मैं बोल रही ना, वेट से एनर्जी का कोई बस कोई रिलेटेड बात नहीं है। नहीं, हेल्दी हाँ, एंड यही डिफरेंस एक समझ नहीं है आजकल, डिफरेंस है, मिसकंसेप्शन। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो उनको मुझे लगता है वो अगर वो घी बटर और ये लस्सी ये योगर्ट दही ये सब नहीं लेती हैं तो आप इनका इंटेक जरूर कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड और फ्रूट जूसेस को अवॉइड किया कीजिए, फ्रूट को ऐसे ही खाया कीजिए और वेजिटेबल जूस लिया कीजिए, क्योंकि ये कहा भी गया है, ईट योर फ्रूट्स एंड ड्रिंक योर वेजिटेबल्स, दैट इज ओके। अ गुड थिंग टू डू। तो डेफिनेटली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर वो ध्यान रखें तो वो बेटर फील कर सकती है, अगर नहीं तो शी कैन कॉन्टैक्ट मी, तो वी कैन सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। यस, थैंक यू। सो थोड़ा सा अब आप बताइए कि ट्राइमेस्टर में कैसे आप गाइड कर सकते हैं, सो दैट जिनको भी ये कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं दे कैन कॉन्टैक्ट यू पर्सनली ऑल्सो। और मैं तो अपना सेशन कल से स्टार्ट कर ही रही हूँ हाँ हाइपोथायरायडिज्म के लिए। डेफिनेटली, या वील स्टार्ट विद इट। ट्राइमेस्टर वाइज मैम ऐसा होता है ना कि योगा, मैं योगा करवाती हूँ क्योंकि मैं अभी योगा टीचिंग सीख भी रही हूँ, मेरी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय सर्टिफिकेट्स। सो योगा करते हैं हम, पिलाटेस करते हैं, देन मेडिटेशन, आई बिलीव इन लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, लाइक आई टेल यू, लाइक वी डू, फिर स्ट्रेस रिलीफ होता है। सो हर टाइम में ऐसा नहीं होता कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब जी हमारे को एक लाइसेंस मिल गया, जो खाओ जैसा मर्जी खाओ और लेटे रहो, नो। प्रेगनेंसी में आप मान सकते हैं लाइक हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, बट देर आर वुमेन हु हैव इवन रैन अ मैराथन, and I will give you an example of Serena Williams who had won Australian Open when she was 2 months pregnant. ओके। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी हुई तो बैठ ही जाइए, आपकी जो फिटनेस है जो आप पहले से कर, जैसी आपकी पहले से फिटनेस है आप कंटिन्यू रख सकते हैं अंडर प्रॉपर गाइडेंस। सो हम ऐसे ही गाइड करते हैं सबकी कैसे फिटनेस, सबकी अलग अलग फिटनेस लेवल, लाइक जैसे मेरा डिफरेंट होगा आपका डिफरेंट है, एवरी वुमेन हैज अ डिफरेंट प्रेगनेंसी रिकॉर्ड होता है सबका, सबकी डिफरेंट प्रेगनेंसीज होती है। सो सबका ट्राइमेस्टर वाइज चलता है रूटीन, तभी ये वन ऑन वन सेशन ज्यादा बेटर रहता है। सो ऐसे मैम हम गाइड करते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि इंडिया में ट्रेंड है। उप्स, what went wrong? मैम मेरा जनवरी में मिसकैरेज हुआ था, कंसीव करने का सोच सकती हूँ, यस मैम, बट बिफोर मैम एक क्वेश्चन आई वाज टेकिंग that she had a miscarriage and she wants to conceive. Yes ma'am, but I would recommend कि before conceiving आप अपना एक अच्छा डाइट जरूर लीजिए। मैं सात्विक डाइट की बहुत प्रमोशन करती हूँ बिकॉज मैं बहुत बिलीव करती हूँ हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये जो डाइट रिलेटेड कल्चर है ना, आई एम सो बिग प्रमोटर ऑफ दिस थिंग। आप अपनी एक लाइफस्टाइल ठीक कीजिए एंड डेफिनेटली जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे आपका नया एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा। एंड आप मुझसे लिखवा के ले सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी जाएगी एंड आफ्टरवर्ड्स भी आप बहुत हेल्दी रहेंगी अगर आप ये कुछ फंडामेंटल्स अपने क्लियर कर लेंगे। आप अपना आपको, क्योंकि ये थोड़ा डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। लुक वी डू नॉट, अभी के उसमें हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, वी डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग बट वी नीड रिजल्ट्स, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, वी नीड टू हैव डिसिप्लिन। बिल्कुल। सो मेरा आज का हमारा सेशन का मोटिव यही था कि हम ये ट्रेंड चेंज करें, अवेयरनेस लेके आए, एग्जैक्टली, जो कंसीव करना चाहते हैं, हो चुका है, या बिल्कुल जिनको डिलीवरी के बाद इश्यूज आ रहे हैं, कि बिल्कुल हमारे पास ऐसे कोच हैं, आपके जैसे वेलनेस गाइड्स हैं, कि जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं। कई बार ऐसे बिल्कुल इश्यूज होते हैं कि हम बेबीज में बिजी हो जाते हैं, घर वालों से हम बात नहीं कर सकते हैं, और सबकी कंसंट्रेशन देखो बेबी पे चली जाती है।
ये प्रॉब्लम मैम बहुत आती है। एंड मैम सिर्फ एक मैं आपको बताऊं, ये चीज मैं मिस नहीं करना चाहती। हम फिजिकल हेल्थ की तो बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिप्रेशन हम लोग इस बारे में बात ही नहीं करते हैं, तो किसी को पता ही नहीं है कि डिप्रेशन में होता क्या है। आई हैड गॉन थ्रू पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, बट क्योंकि कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो और ये बहुत कॉमन है कि तुम अकेले ही माँ नहीं बने हो, सबका हुआ, लेकिन हम सब हर साल नहीं बनते, है ना। तो सबका डिफरेंस होता है और सबकी एक अपनी इमोशनल जर्नी होती है। सो इट इज देयर, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। हमें ये नहीं फील कर, और जो मदर बनती है ना, उसकी एक फिजिकल एग्जॉशन होती है, मेंटल एग्जॉशन भी होती है। So we should give the space to each other, and women help करती है दूसरी women को, because men at times are not able to understand what we are going No, through, they can't. They right? can't. So it is good that if they are helping, but if women can help each other, nothing like that. बिल्कुल, इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि आप हो, आपसे बात कर सकते हैं। कई बार हम फैमिली Definitely में नहीं कर सकते। नहीं वही कर आपकी बात सकते। का एक ही आंसर होता है, ये हुन नवीं बनी है, पहली बारी बनी बस है, अच्छा बस पहली बारी बस बस प्रेग्नेंट हुई है। तो बस वो बंदा सोचता है कि नहीं, एक कल्चर है, ऑलमोस्ट सबके कल्चर साथ है होगा या मैम, ये तो वर्ल्ड इवन वाइड ही है। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मदरहुड से रिलेटेड, ये जो स्टिग्मास है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे रूट्स में है। सो इनको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और ये स्ट्रेसफुल हो जाता है, बिकॉज बट आई आज हैव तो गॉन थ्रू हमारे मद। पास चांसेस हैं और लॉकडाउन ने कई बिल्कुल हमें कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज दी। आगे हम कहते हैं हम प्रेगनेंसी है तो हम कैसे आपको मिलने आ सकते हैं। आपके बिल्कुल पास अब हमें पता चला है कि हम ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं, जूम पे ले बिल्कुल। सकते हैं, Yes, हम I ऐसे have लाइव been रह taking सकते हैं। online sessions. I have my बिल्कुल online sessions going on. So, और काउंसलिंग का क्या है, आप ऐसे बात करके ही, कोई स्पेशल चीज नहीं होती, सिर्फ बात करके ही बहुत बड़ा मन हल्का हो जाता है। दैट इज व्हाट बहुत वी लाइक। बहुत। कल हमारी वो 2 मिनट की टॉक थी ना, जिसमें यू सेड कि हैव यू एवर थैंक्ड योर थाइज, कि मैंने जब एग्जैक्टली आपको बोला कि मेरा वेट बाकी तो अच्छा जा रहा है लेकिन, तो वो रात तक मेरे माइंड में चलती रही कि एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली बाकी लोग हमें हमारा साथ दें ना दें, बट हमारी एक बॉडी है जो हमारा साथ देती है, तो हमें उसको तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना चाहिए ना। ठीक है, हमने बिल्कुल। बच्चों को देखना है, हमारी ड्यूटी है, बट हमने अपने आप को भी देखना है, तो ये हमारी मतलब प्रायोरिटी होनी कहते ना, चाहिए। आत्मा राजी तो परमात्मा भी राजी है। तो बिल्कुल शरीर चलेगा तो ही बाकी काम किए जाएंगे। तो थोड़ा टाइम हमें हर अपने लिए निकालना चाहिए, और अपने लिए भी पॉजिटिव एफर्मेशंस ऐसे होना बिल्कुल चाहिए। अगर आपको किसी दिन अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, आपको मूड नहीं अच्छा है, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी भी, एंड मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। इट इज ऑल नॉर्मल। जब तक हम बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो समझ में आएगा, हाँ यार अगले के साथ भी सेम इश्यूज है, लेकिन अगले का थॉट प्रोसेस नेचुरल है। डिफरेंट है। सो ये नेचुरल है, एवरीथिंग इज नेचुरल। सो वी जस्ट नीड टू टॉक इट आउट। बिल्कुल। अब हमने कितना कुछ सीखा है, एक दूसरे से बात की, कांटेक्ट में आए, एग्जैक्टली और भी हम सेशंस लेके आते हैं सो दैट हम, मुझे होता है कि सब 1 घंटा अपने लिए निकालें। अभी हम योगा ला एग्जैक्टली रहे हैं, मेडिटेशन ला रहे हैं, कुकिंग लेके आ रहे हैं, कि 1 घंटा लॉकडाउन में किसी को ये ना लगे कुछ करने को ही नहीं है, कितना टीवी देख लें। अब तो एक एक बार एग्जैक्टली। महाभारत रामायण महा भी देख ली है, तो अब दोबारा क्या देखें। तो मतलब हमारा प्लेटफॉर्म ही ये था कि हम एक दूसरे से बात करें, अवेयरनेस आए। खासकर आपका कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए भी न्यू था कि नो, हमारे आई पास रियली ऐसा है। अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं। इट इज गोइंग टू यू नो गेट यू रिवॉर्ड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब हम लोग नई चीजें सीख रहे हैं, और ऑनलाइन तो इतना इजी और कन्वीनियंट हो चुका है कि घर इट्स अ बैठे सब ब्लेसिंग, कुछ सीख सोशल लो। इट्स अ मीडिया तो इस ब्लेसिंग। बार ब्लेसिंग रहा है कोविड में। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है आपका, बस जो भी हैं जिनको प्रॉब्लम्स आए, वांट दे शुड कांटेक्ट यू। बहुत ऐसे लोग थैंक यू। हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली। उनको भी पता चले कि गायनी के अलावा भी, कई बार हम अपने इन लॉज के साथ या मदर्स के साथ गायनी के पास जाते हैं ना, हम तब भी बात शेयर नहीं कर सकते। इवन बिल्कुल हस्बैंड के मैम, साथ भी तब तक हम नहीं आजकल कर सकते। इंडिया में ये बहुत हो चुका है कि हर बंदा, चाहे वो फिजिकली फिट है या नहीं है, दे एंड अप हैविंग अ सी सेक्शन। बिल्कुल और जरूरी नहीं है कि उसका नॉर्मल भी हो सकता है।
बट कुछ टाइम से पहले ही कर देते हैं सी सेक्शन वो लोग, कि फुल टर्म हो ही नहीं पाता। तो मैम हमें मेरे अपनी को बॉडी का पता ही नहीं है, नहीं हमें पता बॉडी का पता ही बिल्कुल। नहीं, मैं इसीलिए भी वो लोग कर देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम डॉक्टर फैमिली में, हमारी फैमिली में 17-18 MDs ही होंगे। और हाँ। मतलब मेरे को इतना पैनिक था क्योंकि मेरे मिसकैरेजेस हुए थे, तो मुझे था बेबी करना है, नॉर्मल छोड़ो। तो 9 हम्म। स्टार्ट हुआ जिस दिन, तो मेरा सी सेक्शन हो गया था। एग्जैक्टली exactly. ये स्टिग्मास है ना मैम, ये हमें मेंटली बाहर निकलेंगे तो फिजिकली भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। अगर हम मेंटली कंफर्टेबल होंगे तो फिजिकली डेफिनेटली वी विल बी मोर एक्टिव एंड वी विल बी मोर हेल्दी, एंड वट एवर लाइफ इज कमिंग आउट फ्रॉम अस, इट विल बी मोर बेटर। और बच्चे पे भी उतना ही असर पड़ता है। मैम, हमारा बिल्कुल। जैसे होगा, वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल, बच्चे पे उतना ही, बिकॉज वी आर फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग है। कईयों को मतलब कितना प्रॉब्लम आता है कि फीड नहीं आ रही, इसी चीज का स्ट्रेस की वजह से ही फीड नहीं आती है कभी कभी। मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा होता था, लाइक आई वाज सो स्ट्रेस्ड अबाउट फीड, कि मुझे फीड नहीं आती थी। वाज फाइन बिकॉज, बट ये टाइम ऐसा होता है, यू नीड पीपल, यू नीड समवन टू टॉक हु कैन टेल यू दैट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इसमें राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है, हमारे पास वो सोशल है नहीं है, सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम फॉर वुमेन इज वेरी वीक। यस। वी एंड नीड वी दिस सपोर्ट प्रोवाइड, सिस्टम। हमने मिलके यही सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है सबको, कि अगर आप अपनी मदर से इन लॉज में, पेरेंटल फैमिली में बात नहीं कर सकते हो, तो वी आर एग्जैक्टली, देयर। मैंने यस, आज दिस इज समथिंग आई हैव अपनी लर्नड। फ्रेंड्स को, मैंने आज जब पोस्ट डाला था तो आई सेड कि अपनी फ्रेंड्स को, डॉटर्स को, जो भी आपको लगता है कि इस चीज से एग्जैक्टली, निकल रही हैं, डू इनवाइट देम, इट्स फॉर ऑल ऑफ यू। बिकॉज हमने पता अगर है गलती की है तो कोई और नहीं करे। आस्था जी, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। ये चीज भी मुझे पहले नहीं समझ में आई थी, जब तक मैंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं की। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये, अगर मुझे इतनी प्रॉब्लम आ सकती है जबकि मैं फिजिकली फिट थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट मेंटली वो सपोर्ट जहाँ पे, बिकॉज आई हैड माई मेंटल इश्यूज, कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, आई वॉज नॉट, समझ ही नहीं आना था ये क्या हो गया, है ना, ये कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं और डर होता है। ठीक है, नेचुरल फियर होता है कि अब मदरहुड में कैसे होगा, हम लोगों को आदत है ना सोचने की ज्यादा। सो दिस मेड मी कि अगर मुझे फील हो सकता है तो और भी होंगी। बट हम बात किससे करें, गायना के पास तो घंटा घंटा रो नहीं सकते हैं। सो दिस मेड मी फील कि हाँ, वी नीड सम सपोर्ट सिस्टम दैट इज मेडिकली एडेड एंड इट कैन हेल्प अस। सो फिर मैंने ये कोर्स किया, उसके बाद अभी स्टिल आई एम परस्यूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर, सो दैट आई कैन हेल्प अदर पीपल इन अ प्रोफेशनल वे। एंड इन दिस इज डेवलप्ड द होल कंट्रीज मोटिव। इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, डेवलप्ड इट इज कंट्रीज अ में है, बिग, इंडिया में इट्स नॉट ट्रेंडिंग। तो हम इसको आगे लेके आएंगे जरूर, ताकि डेफिनेटली जो डेफिनेटली। सपोर्ट आपको करना चाह, मतलब अच्छे से आपकी ले सकें, सपोर्ट ले सकें, आपकी गाइडेंस ले सकें। तो एक क्वेश्चन आ रहा है दैट माय डॉटर इज 5 months old but my menses are pending after delivery till now. Ma'am, it's totally fine if you are feeding and breastfeeding के time menses delay होते ही होते हैं. When you will stop feeding, then your menses will come back. You don't have to stress about it. At times, like when people are feeding till 2 years, 1.5 years, तो menses उतने late भी हो जाते हैं. There is nothing to worry about. It is all normal. It is a natural process. डोंट हैव टू वरी, एंजॉय दिस टाइम दैट यू डोंट हैव मेंसेस। कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ रही है, अपने आप आ जाएंगे, ये आपके आपके अंदर ही है, ये वापस आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैम एक और क्वेश्चन आ रहा है निधि पुरी जी का, प्लीज। हाँ, please suggest me that girls who are having hairs on face, what is the permanent treatment for that, if the age is of 16? Okay, permanent treatment, ma'am, this is a very temporary phase, so don't go for a permanent treatment. She's just entered her puberties, क्योंकि 16 है, तो अभी हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट नॉट वरी अबाउट इट, एंड आप बस अपना कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल हेयर ग्रोथ तो होती है, अब मेरे भी है, बस इसके बारे में ज्यादा सोचे ना। और थोड़ा सा बस आप अपनी फेस स्क्रबिंग करें, मैं तो यही बोलूंगी, कोई बड़ा ट्रीटमेंट मत ले, डोंट गो फॉर लेजर एंड एनीथिंग। एंड इफ दैट इज लाइक अलग ही फेशियल हेयर है,
जिसमें अगर हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है, लाइक इफ द हेयर ग्रोथ इज समवेयर डिफरेंट, then I think you can go for a natural process. Don't go for laser because that is not very recommended because the girl is very young. राइट मैम, बिल्कुल अभी वो बहुत Yeah, छोटी है, तो इसलिए बहुत अभी छोटी है। ऐसा लेजर ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, तो परमानेंट चीज हार्मोनल नहीं होनी चाहिए, टेम्पररी चीज है, फेज है उसका। तो अभी आप इतना बड़ा डिसीजन मत लें तो बेटर होगा। राइट। और प्लीज उसको अभी ये बार बार रियलाइज भी मत करवाइए। बिल्कुल। नेचुरल, इट्स ओके। बहुत सारे ही आजकल तो एडवांसमेंट्स हैं। डोंट मेक हर एम्बेरेस और रिपीट इन फ्रंट ऑफ हर, आई मस्ट। टेल हर टू बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल अगर नहीं राइट। आते हैं ना तब ज्यादा प्रॉब्लम है, जो आ रहे हैं ना वो अपने आप कम हो जाएंगे। हो सकता है हार्मोनल है, बाद में ठीक हो जाए, थोड़ा या बाद में कैन बी ट्रीटेड आफ्टर। उसकी मैम, उसकी डाइट आप बहुत हेल्दी रखिए, गिव हर मोर कैल्शियम, उसको दूध लस्सी छाछ जो है ना, जो नेचुरल डाइट है, आप उसकी डाइट अच्छी कीजिए क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है अभी। और आप उसकी एक्टिविटी हाई रखिए, डेफिनेटली उसकी हार्मोन्स जो इम्बैलेंस अगर हो रहा है तो उसके बैलेंस हो जाएंगे। प्लीज टेल मी अबाउट नेचुरल प्रोसेस। हाँ, यही आप पहले तो अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर वो सोशल मीडिया पे बहुत बैठती होंगी, तो उनका स्क्रीन टाइम कम कीजिए और उनकी स्लीप बढ़ाइए, जिससे क्योंकि क्या होता है, अगर हम सोते हैं तो हमारे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो ड्यूरिंग स्लीप बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमारी बॉडी को भी रेस्ट मिलता है और हमारी जो भी बॉडी प्रोसेसेस होते हैं ड्यूरिंग स्लीप वो नॉर्मल रहते हैं अगर हमारी प्रॉपर स्लीप है। और अगर आप अपनी अच्छी डाइट रखेंगे, यही मैम 3-4 प्रोसेसेस होते हैं नॉर्मल, और कोई प्रोसेसेस नहीं है, स्लीप, डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। सो आप ये तीनों चीजें अगर ठीक रखेंगी, आई एम डेड श्योर आपका जो ये बच्चा है 16 साल की, ये इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। आप इसको दौड़ाइए ना, भगाइए इसको, 10 चक्कर लगवाइए, इसको बोलो थोड़ा पसीना निकाले, सोशल मीडिया बंद करे, और ये खाना अच्छा खाए, घी खिलाओ, अच्छा दूध पिलाओ, लस्सी पिलाओ, ये सब चीजें करें और टाइम से सुलाएं। 10 बजे सुला दीजिए क्योंकि देयर इज अ सर्टेन टाइम व्हेन योर बॉडी इज सिक्रीटिंग सर्टेन हॉर्मोन्स एंड दैट नीड्स टू बी secreted, utilized by your body. So if the sleep is not happening at a regular time, हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाएगा, तो इससे ये थोड़ी बहुत ही जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको दिखनी शुरू होंगी, जो एंड में हो सकता है कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए। वैसे मैं ये नहीं कह रही होगी, लेकिन जो अगर हम ये चीजें खराब करते हैं, अपने रेगुलर प्रोसेसेस लाइफस्टाइल खराब करते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। राइट। मेरे पीरियड्स डिले हो रहे हैं मैम। पीरियड्स डिले का यही आंसर है, आप अपनी ये चीजें ठीक कीजिए, आप अपनी डाइट ठीक कीजिए, डेफिनेटली आप अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। आजकल फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करता। 10 आप दंड बैठ लगाओ, मैं आपको लिख के दूंगी, आपके पीरियड्स टाइम पे आएंगे, बिल्कुल टाइम पे आएंगे। और आपको जो ये मूड स्विंग्स हैं ये भी बहुत फिजिकल एक्टिविटी के वजह से बहुत बैलेंस हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता है, अच्छा पीरियड्स आ भी गए, मूड स्विंग का पता भी नहीं लगता, ना ब्लोटिंग होती है, ये सब चीजें ना हमारी ये सब लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से होते हैं। एंड आफ्टर मिसकैरेज ठीक हो गया था, लेकिन दिस मंथ फिर लेट हो गए हैं। ओके मैम, आप अपना ना रूटीन में देखो आपने क्या गड़बड़ किया है, क्या आपने डाइट नहीं ठीक से लिया, क्या आप सोए नहीं है, क्या आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज का। सो दीज आप अपना थोड़ा जर्नल रखा कीजिए कि सो दैट फॉर समवन हु वांट्स टू करेक्ट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आप अपना लाइफस्टाइल का जर्नल थोड़ा रखिए कि मैं डाइट में क्या ले रहा हूँ, नॉट टू बी लाइक कॉन्शियस अबाउट कि प्रोटीन कार्ब्स क्या है, नहीं, अपना एक रूटीन का कि मैं इतने बजे सो रही हूँ, मैं इतने बजे खा रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा एक चाहे मेंटल जर्नल रख लो, जरूरी नहीं कॉपी पे, मेंटल जर्नल रख लो सो दैट यू कैन डिसिप्लिन योरसेल्फ। आप डिसिप्लिन ले आइए अपने लाइफ में। ये प्रॉब्लम्स आप पूछिए अपनी दादी नानी से वो क्या करती थी, आप देखना वो आपको फटाफट बता देगी तू ऐदा नहीं ऐदा कर, यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। मैम स्ट्रेस से भी बहुत फर्क पड़ता है। एक तो मैम डेट आप काउंट ही मत करो अभी कि नहीं इतने दिन हो गए, इतने दिन नेचुरल रहिए। मेरे को स्ट्रेस से बहुत होता था कि स्ट्रेस से थायराइड अप जाना, तो वो सोचना कोई भी इश्यूज होना, तो अब मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी है, कुछ भी हो जाए, ये एनीथिंग। ना मैम एक चेन बन जाती है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस के बारे में कि ये चीज क्यों हो रही है, ये ऐसे, तो ये ना चेन कभी एंडलेस है, सो यू हैव टू ब्रेक द चेन।
आपका जो लाइफस्टाइल है ना वो ठीक हो जाएगा ना मैम, बहुत चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी, बहुत ज्यादा चीजें। स्ट्रेस से तो बहुत होती है, मतलब आप मेडिटेट करिए, और हार्मोनल्स जो आपके है ना, हम कभी पहले रियलाइज ही नहीं करते थे कि स्ट्रेस से हमारे हार्मोन्स का भी लिंक है इतना, बट जब मैंने बहुत लिंक है मैम स्ट्रेस, क्योंकि यहीं पे ही तो आएगा और यहीं से ही तो हॉर्मोन सब कुछ तो सेम यहाँ से सब पर ही कुछ है। गड़बड़ हो जाती है ना, हम कहते हैं हम खा बस। रहे हैं, नेचुरली स्ट्रेस होगा, सोएंगे नहीं तो कुछ भी है, कोई भी हो, कैसा भी स्ट्रेस हो, कैसा भी इशू हो, इवन शी वांट टू एंड मैम कंसीव। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पे अपना ध्यान रखिए कीजिए, ट्राई टू डीप ब्रीथ जब लगता है, जब फ्री बैठे हो तो अपनी ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग टू रिलीव स्ट्रेस, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हमें नहीं कंट्रोल करना आता, हमें नहीं पता कि अपना स्ट्रेस कैसे कम करें, एक सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, ब्रीदिंग पे अपनी ध्यान दीजिए, बेली ब्रीदिंग किया कीजिए, that will help you relieve your stress। एंड आपके बहुत सारे इश्यूज लाइक कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सब छोटी छोटी जो चीजें होती रहती हैं, जिनके ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये चीजें हमारी लाइफ में एड अप होती हैं, तो आपकी काफी चीजें बेटर हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, आप अपनी ब्रीदिंग ठीक कीजिए, काफी कुछ ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस तो चला ही जाएगा, काफी बेटर हो जाएगा। राइट। स्ट्रेस जाएगा तो नहीं, स्ट्रेस तो हमारा लाइफ का पार्ट है। वो लिख ही रहे हैं कि ये स्ट्रेस तो मैं बहुत लेती थी, तो मैम बस स्ट्रेस स्ट्रेस छोड़ लोगे दीजिए, तो काफी बाकी कुछ चीजें आपकी रह रही है ना, स्ट्रेस को खाना बंद कीजिए, अब बाकी चीजें खाइए, स्ट्रेस अपने आप। आई नो मैं ये कह रही हूँ, इट इज नॉट इजी, बट छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेस। तो मैम मेरे को लगता है स्ट्रेस हमें आउटसाइड चीजों का ही होता है ज्यादा, तो आउटसाइड इश्यूज हैं, इसने ये बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, तो वो लेना बंद कर दीजिए, लव योरसेल्फ, बस एंजॉय योर एग्जैक्टली exactly, जर्नी, अपनी बस ड्यूटीज कीजिए, एक्सपेक्टेशन जीरो कीजिए, चार पांच बिल्कुल। फॉर्मूलेज अप्लाई कीजिए, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। पहले अपने आप का ध्यान रखना शुरू कीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी डाइट, ये 3-4 फंडामेंटल्स है, किसी ने कुछ कह दिया तो हमारी डाइट पे फर्क पड़ जाता है, वो नहीं करना। डाइट का रिलेशन हमें इमोशंस से नहीं रखना, किसी दिन स्ट्रेस है तो हम इतना खा लेंगे, या फिर हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल ये नहीं। बहुत एक्सट्रीम है। ये रिलेशनशिप ऑफ इमोशंस विद फूड हमें खत्म करना पड़ेगा। राइट। बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खाना तो वैसा ही खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करते हैं, बिल्कुल। जिन्होंने कंसीव करना है कर चुके हैं, आपसे गाइडेंस लेंगे श्योरली वो, डेफिनेटली। तो वी विल मीट सून अगेन। तो ऐसे लग डेफिनेटली रहा है इट वाज। फैमिली में बैठ के बात कर रहे हैं आज, इट्स जस्ट लाइक लग भी रहा आपका पहला सेशन है, सच अ ग्रेट टॉक। तो अब थैंक जिसके भी यू। कोई फीडबैक्स हैं, इश्यूज हैं, आप हमें कमेंट करिए, तो मैम विल ट्राई। डेफिनेटली यस, आई विल बी देयर टू आंसर ऑल ऑफ इट, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। और मैम अब बाकी हमारे आप अपने यूनाइटेड आप टीम से ध्यान कनेक्टेड रहेंगे। रखिए। हाँ डेफिनेटली आप अपना ध्यान खुद रखिए, बाकी सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। So, thanks for today's session. It was great थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, interacting थैंक यू with you. एवरीवन, थैंक यू सो मच, Thanks to हैव all अ for गुड डे। joining. Bye. ओके बाय।